Good morning, students. So next in our this TIRI plasmid topic is about organization of tDNA. So in last lecture we discussed about this properties of crown gall cells and TI plasmid, how it works. Then these are the structure of nopalin and octopine, role of opine was discussed. Now we'll discuss about organization of tDNA. मतलब we are now talking about this particular reason. इना सारे reasons की गल नहीं करनी आपां, सिर्फ tDNA. tDNA is the part which actually transferred into plant cell. तो ये plant cell च जांदा है, but ये tDNA की है, इहदे कोल की sequence है, की information है, that we will study in this part. So this is also known as transferred DNA is that which contain 23 kb segment of TIRI plasmid. So the size कितना है 23 kb, which is transferred into plant genome during agrobacterium infection. tDNA is defined on its both sides by 24 base pair direct repeat border sequence. Now direct repeat border sequence का मतलब किया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ tDNA. तो इहदे दोनों साइड ते की होएगा 24 बेस पेयर दा रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट होएगा. दिस इज राइट बॉर्डर 24 बेस पेयर, दिस इज लेफ्ट बॉर्डर 24 बेस पेयर. तो ये बॉर्डर सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस की आप अगे देखांगे. देन tDNA is border sequencing contain the genes for tumor hairy root induction and those for opine biosynthesis. अपन लास्ट लेक्चर च भी गल करती सी कि tDNA कोल की हुंदा, there is a opine which provide carbon and nitrogen sources, and it also has IAA ਜਾਂ ਆਪਾਂ साइटोकाइन ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ genes ਨੇ which can induce tumor or hairy root induction. So PTI has 3 major genes which are involved in crown gall formation. TI दी ਆਪਾਂ specific ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ. We are not now talking about RI. ठीक है, now TI ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, there is certain genes which are involved in crown gall formation. Two of these gene are, दो gene ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, IAM and IAH, which encode for enzyme that convert tryptophan into indole acetic acid. Now कई बारी नेट दे एग्जाम या कंपीटिटिव एग्जाम दे विच क्वेश्चन आंदा आ, नेम दी प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन. प्रिकर्सर की हुंदा जिहदे तो सबस्ट्रेट, फर्स्ट सबस्ट्रेट जिहदे तो आपां ऑक्सिन या इंडोल एसिटिक एसिड या फाइटोहार्मोन ऑक्सिन बना सकते हैं. सो द आंसर टू दैट अमीनो एसिड इज ट्रिप्टोफैन. सो क्वेश्चन आएगा, नेम द अमीनो एसिड विच इज इन्वॉल्व्ड as a precursor in auxin biosynthesis. So थे नाल 4 ऑप्शन की आ जाएगा, tryptophan, then isoleucine, leucine, alanine. So your answer will be tryptophan. 2 नंबर दा 4 नंबर दा कई बारी नेट दे एग्जाम च क्वेश्चन आया हुआ है. So deletion of these 2 genes produce shooty crown gall. कहंदे जे IAM या IAH डिलीट हो जान तो इट विल क्रिएट शूटी क्राउन गॉल डिजीज. शूटी क्राउन गॉल डिजीज केड़ी होगी, जिहदे विच शूट ओरिजिनेट होणगियां या शूट दे विच कैंसर होएगा. Therefore the locus is also known as shooty locus. shooty locus मतलब the area, जिवें आपां लोकेलिटी दी गल करदे हां कि this is the area where you can find bakery products, है ना. Same way there is a locus, there is a area where you will find IAM and IAH. These are responsible for auxin biosynthesis, and deletion of these segments can lead to the formation of shooty crown gall. And next is the gene were designated as TMS. TMS the full form किया, tumor with shoots 1 and tumor with shoot 2. तो IAM is known as TMS1 and IAH is known as TMS2. Third gene, हम ये 2 gene दी ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर ली. The third gene is known as IPT. This IPT encode an enzyme which involve in the production of cytokinin. This is G18 like cytokinic isopentyline adenine. So
IPT की बनाता है साइटोकाइनिन, IAM एंड IAH की बनाते हैं इंडोल एसिटिक एसिड और यू कैन से ऑक्सिन। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, these are the phytohormones which are involved in the growth of plant cell। then ਕਹਿੰਦੇ this deletion, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ IPT ਨੂੰ, deletion और abolition बोलते हैं of IPT result in rooty crown gall। तो अगर ਆਪਾਂ पिछले लेक्चर च पढ़िया सी, इत्थे किते गल कीती सी ਆਪਾਂ कि जदों ये क्राउन गल सेल की गल करते हैं तो इट कैन आइदर फॉर्म रूट और शूट क्राउन गल। तो शूटी क्राउन गल फॉर्म होएगी विद द डिलीशन ऑफ IAM एंड IAH एंड रूटी क्राउन गल होएगी विद द डिलीशन ऑफ IPT जीन। एज अ रिजल्ट दिस लोकस इज नोन एज रूटी लोकस एंड डिनोटेड बाय TMR, ट्यूमर हैविंग रूट। नैक्सट ये सारा TDNA का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, दिस इज TDNA स्ट्रक्चर, इत्ते आपां आंदे हैं। नैक्सट एक होर कहते इहदे कोल रीजन या जीन है विच इज इन्वॉल्व इन ट्यूमर फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज TML। TML deletion leads to the formation of large tumor। इहदे विच ना शूटी ना रूटी, it can form a large tumor in the plant cell, so that reason is known as TML। In addition, TDNA also contain genes involved in opine biosynthesis, ये ਆਪਾਂ बार-बार गल कर ही रहे हैं। These genes are located near the right border of TDNA। So देखो, this is the structure of TDNA। These are left and right border। This is IAH, this is IAM। IAH and IAM involved in the tumor which is related to shooty crown gall। Then there is a IPT, that is TMR, which is involved in the rooty crown gall। Then there is a TML, this TML is known as the large tumor or deletion, it leads to the large tumor formation। and this is NOS, NOS is that is related to opine biosynthesis, that is present in like near the right border of this TDNA। so this is TDNA structure। तो इट मीनस कि जदों आपां इस वैक्टर सिस्टम की गल करिए, दिस इज माई TDNA पार्ट, तो अगर ये कोल वीर रीजन है या ट्रा रीजन है या ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन है, तो जदों ये बैक्टीरियल सैल, दिस इज एग्रोबैक्टीरियम, जदों ये बैक्टीरियल सैल इन्फेक्शन करेगा प्लांट सैल दे विच, तो प्लांट सैल दे विच जदों इन्फेक्शन करेगा तो सिर्फ TDNA नूं ही प्लांट सैल दे विच पाएगा। और वो TDNA कोल ही बहुत कुछ है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ऑक्सीसाइटोकाइनिन जीन्स भी ने एंड ਉਹਦੇ ਕੋਲ डिफरेंट नॉस या ओपाइन्स भी ने। हुण इत्थे एक कंसैप्ट आपां क्लीयर करदे हां, इत्थे आपां क्लीयर करना आ कि असीं अपना DNA ऑफ इंटरस्ट भी पाना है ना। देखो साडा मकसद की आ कि असीं प्लांट सैल तो कॉपीज लैणियां आ, प्लांट सैल तो कॉपीज अपने DNA ऑफ इंटरस्ट दियां लैणियां आ, बट दिस इज नैचुरल सिस्टम। नैचुरल सिस्टम दे विच डिलीशन होण नाल शूटी या रूटी बनदे आ। हुण इह साडे ते डिपेंड करदा आ कि असीं अपने TDNA दे विचों IAH और IAM नूं डिलीट करना या असीं IPT नूं डिलीट करना विच इज रिलेटेड टू साइटोकाइनिन, या फिर असीं किहनूं डिलीट करना TML। तो मेरा DNA ऑफ इंटरस्ट में कित्थे पाना, सेम मैं इस जगह ते अपना DNA ऑफ इंटरस्ट पा रही हूं विच इज रिलेटेड टू IAM एंड IAH। तो होएगा कि जदों मैं इस पार्ट ते अपना DNA ऑफ इंटरस्ट पाता तो ये पार्ट डिलीट हो गया। डिलीट होने का मतलब की है कि मैं IAH एंड IAM दे सीक्वेंस नूं डिस्टर्ब करता। तो जदों ये डिलीट हो गया, डिलीट होने नाल की होएगा, इट विल फॉर्म शूटी कैंसरस सैल। शूटी कैंसर सैल अगर बन रहे आ एंड अपने नॉस एंड ऑल सारा TDNA प्लांट सैल नूं इन्फेक्ट कर रहे हैं, दैन इट मीन साडे DNA ऑफ इंटरस्ट दियां कॉपीज बन रही हैं। सो इस वे दे नाल आपां वर्क करांगे कि अपना DNA ऑफ इंटरस्ट असीं किहड़ी पोजीशन ते पा रहे हां, आइदर एट IMH और M और आइदर एट IPT और एट TML रीजन। तो जिस रीजन च पाओगे ओह जी डिजीज, ओह जिहा ही कैंसरस ग्रोथ होएगी एंड वो कैंसरस ग्रोथ होने दे नाल साडे कोल एंड दे विच साडा पर्पस की आ प्लांट सैल तो कॉपीज ऑब्टेन करनियां अपने DNA ऑफ इंटरस्ट दियां, वो सानू मिलणगियां, ओबवियसली मिलणगियां, क्योंकि जदों इत्थे शूटी क्राउन गल डिजीज होगी वो ना होने का मतलब क्या कि देयर इज अ कैंसरस लाइक ग्रोथ। कैंसर लाइक ग्रोथ मतलब देयर इज अ डिवीजन एंड डिवीजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ DNA of interest। तो DNA of interest
वो साडे इंटरेस्ट दा साडा इंसर्ट है, जिहदी असी कॉपी चाहते हैं वो आ, तो प्लांट सैल सानू कॉपीज मिलणगियां। नेक्स्ट देखो की लिखा होया, The tDNA is organized into two distinct regions called TL, which is left tDNA, and TR, which is right tDNA. In case of Nopalin type of plasmid, both TL and TR are always transferred together and integrated into plant genome as a single segment. But in case of Octopin, please तुसी start करो type of plasmid, the TL and TR are transferred independently. It depend करता कि किस तरह दे ओपाइन है। You can skip this part. Let me check. Just read it. You can skip this part. Come to this part. That all the genes present in tDNA contain eukaryotic regulatory sequence. As a result, these genes are expressed only in plant cell. तो आप ये गल पहला भी की tDNA कोल different kinds of genes present ने। जब आप पहला गल की सी कि कोल दोनों तरह के जीन ने जेडे प्रोकैरियोटिक सेल च भी एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जेडे सिर्फ एग्रोबैक्टीरियम या बैक्टीरिया च एक्सप्रेस करेंगे, एंड ये कोल यही जी भी जीन्स ने जेडे सिर्फ प्लांट सैल दे विच यूकैरियोटिक सेल तो tDNA कोल सारे जीन है जेडे प्लांट सैल दे विच अपने आप नू एक्सप्रेस करेंगे। दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन दी एग्रोबैक्टीरियम। सो द जीन IPT determine whether a given aggregated strain has narrow or broad host range। कहते IPT एक्चुअल दे विच which is related to cytokinin, ਇਹ डिपेंड एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ डिसाइड करता है नैरो और ब्रॉड होस्ट रेंज। बच्चा ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ नैरो और ब्रॉड होस्ट रेंज ਦਾ कि एग्रोबैक्टीरियम ਦੀਆਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ स्ट्रेन्स ਹੋਣਗੀਆਂ। जे ब्रॉड रेंज आ तो सारियां स्ट्रेन्स ਨੂੰ tDNA इन्फेक्ट कर सकता या एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्ट कर प्लांट सैल ਨੂੰ इन्फेक्ट कर सकता। बट कई यह भी स्ट्रेन्स होंगे विच आर नोन एज नैरो। नैरो मतलब जिहदे कोल इन्नी क्षमता नहीं है कि वो प्लांट सैल ਨੂੰ इन्फेक्ट कर सकन या उन्नी कैंसरस ग्रोथ कर सकन। सो दैट आर दी कैटेगरी रिलेटेड टू नैरो और ब्रॉड होस्ट रेंज। होस्ट की आ प्लांट सैल, तो प्लांट सैल ਨੂੰ कितना इफेक्ट कर सकते हैं, केड़े केड़े एग्रोबैक्टीरियम इफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू IPT। So all broad host strains have a functional IPT gene, while those lacking function have a narrow। तो उन्होंने कंपैरिजन भी दसता कि जेड़ा अगर IPT फंक्शनल है, बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, देन देयर इज अ ब्रॉड होस्ट रेंज। अगर सही तरह काम नहीं कर रहा IPT इज नॉन फंक्शनल, देन इट हैज अ नैरो होस्ट रेंज। नैरो होस्ट रेंज का मतलब डायरेक्टली किया कि सारे प्लांट सैल्स या डाइकोटिलेडोन ਨੂੰ अफेक्ट नहीं कर पाएगा। सो नैक्सट ਆਪਾਂ पढ़ांगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विर रीजन। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो शेयर करूंगी, बिकॉज tDNA ਨੂੰ अच्छी तरह समझो, ਉਹਨੂੰ पढ़ो मूडल तो, एंड देन ਆਪਾਂ विर रीजन ਨੂੰ पढ़ांगे कि विर रीजन जो है एक्चुअल हेल्प करदा tDNA ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। तो विर रीजन ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ tDNA ਈਜ਼ੀਲੀ ट्रांसफर हो ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਟੂ प्लांट सेल। सो दिस इज विर रीजन। सो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। Okay, thank you so much.